Hello kids, Namaskar. Hope you all are fine and safe at your home. As we have completed short question answers of chapter number 9. So today in this video we are going to discuss long answer questions and application based question. ओके आज हम क्या लर्न करने वाले हैं? आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? I am going to discuss long question answers and application based questions. So dear kids, let's start with long answer questions. Okay, मैं डिस्कस करने वाली हूँ and you all are going to write in your notebook. Okay, आप पहले आंसर समझ लो कि क्वेश्चंस हमें किसके बारे में पूछे हैं and then you all are going to write in your notebook. So let's start with number first. What is the skeletal system? How does it help us? So first question is skeletal system क्या है? Okay, and वो हमें कैसे help करते हैं? Right, skeletal system क्या है? And how does it help us? वो हमें कैसे help करता है? So dear kids, skeletal system क्या है? It is the framework, right? वो एक bones का framework है जो हमारे body में है. Yes or no? And we also called it skeleton. That gives shape and support to our body. Yes, क्या करता है skeletal system? हमारे बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट करता है, हमारे इनर सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है. Yes or no? So, first of all, write down the question in your notebook. What is the skeletal system? How does it help us? So, we will write the answer like this. A skeleton or a skeletal system is a firm structure of bones. वो एक कैसा है? It is a structure of bone. It is a framework of bones. Yes, that gives support to our body, shape to our body. वो क्या करता है? हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है. Yes, and protects the internal body parts. जो भी हमारे सॉफ्ट इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उसको वो प्रोटेक्ट करता है. Yes or no? So, we will write the answer like this. A skeleton or a skeletal system is a firm structure of bones that gives support to the body and protects the internal body parts of our body. So dear kids, start writing. A skeleton or a skeletal system is a firm structure of bones that gives support to the body and protects the support to the body and protects the internal body parts of our body. Finish? समझ में आया आपको ये आंसर? Yes, वो क्या करता है? How does it help us? Support our body and protects the internal body parts. Yes.
So now let's come to number second one. So let's read the second question. What makes up the circulatory system? How does it help us? Now again स्केलेटन सिस्टम के जैसे ही ये क्वेश्चन है. हमें पहले स्केलेटन सिस्टम की इंफॉर्मेशन हमने दी, राइट, उसकी डेफिनेशन लिखी. सो नाउ वी विल राइट व्हाट मेक्स द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कंसिस्ट है, कौन से ऑर्गन्स हैं, यस, एंड देन हाउ डज इट हेल्प अस, वो हमें कैसे हेल्प करते हैं. सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू गिव द आंसर व्हाट मेक्स अप द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या क्या है, कौन से ऑर्गन्स हैं, क्या मिलके बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सो द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. यस, विच ऑर्गन्स? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल फॉर्म अवर सर्कुलेटरी सिस्टम. ये तीनों ऑर्गन्स मिला के क्या बन जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम. देन हाउ डज इट हेल्प अस, वो कैसे हेल्प करता है. सो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ा था डियर किड्स? यस, द ब्लड कैरीज द यूजफुल कंपोनेंट्स. ब्लड क्या करता है, जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ था उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो भी यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उसको वो कैरी करेगा. यस, उसके साथ ऑक्सीजन को कैरी करेगा, वाटर को कैरी करेगा, एंड इट विल सप्लाई टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ले जाएगा. यस, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट ही है. यस और नो? सो व्हाट मेक्स अप द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या क्या है, क्या क्या कैसे बनता है वो. सो द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल फॉर्म अवर सर्कुलेटरी सिस्टम. अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन. What makes up the circulatory system? How does it help us? How does it help us? Now, let's see the answer. How we are going to write in our notebook. See how we are going to write. First, you will write the question, then answer second. The heart, blood and blood vessel. कैसे लिखोगे? The heart, blood and blood vessel form our circulatory system. Form our circulatory system. The blood carries the useful components. Blood क्या करता है? It carries the useful components. And क्या करता है blood? It carries the useful components, right? And oxygen, right? Useful components कहाँ से मिलेगा? जो हमने फूड खाया था, जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है वहाँ से हमें यूजफुल कंपोनेंट्स मिलेंगे. एंड द एयर वी ब्रीथ, ऑक्सीजन. यस, सो यूजफुल कंपोनेंट्स एंड ऑक्सीजन दोनों को ब्लड कैरी करता है एंड पहुंचाता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो राइट डाउन. द ब्लड कैरी द यूजफुल कंपोनेंट्स of the digested food and oxygen
and oxygen to the different parts of the body with the help of the circulatory system. किसकी हेल्प से? with the help of circulatory system, right? कौन कौन हेल्प करता है? सारे तीनों ऑर्गन्स उनको हेल्प करते हैं. हार्ट क्या करेगा? प्लम्स ब्लड करेगा. ब्लड क्या करेगा? इट विल कैरी द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑक्सीजन. यस, एंड किसकी हेल्प लेगा? विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल. विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल. So, written the answer. Let's check what you all have written. The heart, blood and blood vessel form our circulatory system. The blood carries the useful components of the digested food and oxygen to the different parts of the body with the help of the circulatory system. With the help of the circulatory system. So first and second completed. Okay, good. So now let's see the third question. What is the excretory system? How does it help us? Excretory system क्या है and वो हमें कैसे हेल्प करती है? ओके, क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि what is excretory system and how does it help us? वो हमें कैसे हेल्प करती हैं? क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? ओके, सो excretory system क्या है dear kids? It is the system which removes waste from our body. ये एक ऐसी सिस्टम है जो क्या करती है? वेस्ट रिमूव करती है हमारे बॉडी में से. यस, वेस्ट सच एज यूरिन एंड स्वेट. यस और नो? यूरिन और स्वेट ये रिमूव करती है हमारे बॉडी में से. यस, स्वेट इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द स्किन. जो स्वेट है वो हमारे बॉडी पे से कैसे रिमूव होता है? विद द हेल्प ऑफ अवर स्किन. हमें पसीना आता है. यस, पसीना कहाँ पे आता है? स्किन पे ही आता है ना. सो excretory system is the system which help us to remove the waste from our body. Yes, and waste such as urine and sweat. and जो sweat है वो कैसे रिमूव होगा हमारे बॉडी से? थ्रू द स्किन. and urine is removed with the help of the urinary system. यूरिन कैसे रिमूव होता है? with the help of our urinary system. Okay, understand? So now let's see the answer, how we are going to write. Let's write first of all the question. What is the excretory system? What is the excretory system? How does it help us? How does it help us? So, answer number 3, the excretory system function to remove waste, right? उसका क्या function है? To remove waste from our body. Yes, such as urine and sweat. So, write down dear kids, the excretory system function is to remove waste such as
urine and sweat from the body sweat is removed from our body sweat is removed from our body through the skin and urine is removed with the help of urinary system. ओके, यूरिन किससे रिमूव होता है? विद द हेल्प ऑफ यूरिनरी सिस्टम. कंप्लीटेड. थर्ड वन कंप्लीटेड. ओके, सो नाउ लेट्स चेक. आप लोग एक बार चेक कर लो. द एक्सक्रीटरी सिस्टम function to remove waste such as urine and sweat from the body. Sweat is removed from our body. Through the skin. Urine is removed with the help of urinary system. So here we have completed third question. So now let's move to number 4th. It is the last answer. Explain the process of digestion. So here we have to explain the whole process of digestion. हमें पूरा प्रोसेस बताना है डाइजेशन का. ओके, डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, कैसे पहुंचता है स्टमक तक, सब कुछ पूरी एक्सप्लेन करनी है प्रोसेस. राइट. सो डाइजेशन स्टार्ट विथ माउथ. राइट. डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? इन द माउथ वेयर द फूड इज चीव्ड एंड ब्रोकन. यस, वहाँ पे क्या होता है? जो भी हमने फूड खाया है वो चीव होता है एंड ब्रोकन डाउन होता है इनटू स्मॉलर पीसेस. राइट. यू कैन ऑल्सो राइट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड यू कैन ऑल्सो राइट द फूड इज ब्रोकन डाउन एंड चीव्ड into smaller pieces. And then फिर क्या होता है? चीव हो जाता है and then it is passed to the stomach with the help of food pipe. फिर क्या होगा? जो भी फूड चीव हो गया है वो स्टमक तक किसकी हेल्प से पहुंचाया जाएगा? with the help of food pipe. यस, यू कैन. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, हम यहाँ से भी पढ़ सकते हैं एंड एक्सप्लेन मैं आपको कर रही हूँ यहाँ से. देन आई विल शो यू हाउ वी विल राइट इन दी नोटबुक. ओके, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. माउथ में क्या होगा? फूड इज चीव्ड एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड इट विल पास इनटू स्टमक विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप. Yes, and then in the stomach again the food is going to break down. Yes, again food again break down होगा. Yes, into smaller pieces and then the food is passed into small intestine. From the stomach the food will be passed into the small intestine. Then what small intestine is going to do? It will absorb the useful components
राइट. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? इट इज गोइंग टू ऑब्जर्व द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड and the unobserved components are passed into the large intestine. Yes, so जो भी unobserved components होंगे वो सारे कहाँ पे पास हो जाते हैं? in the large intestine. Okay, and जो भी solid waste products हैं, right, which is removed by our body through the anus. Okay, so we will write the answer like this. The process of digestion is as follow. Right, हम कैसे लिखेंगे? The process of digestion is as follow. Number first, digestion start in the mouth where food is chewed to be broken down into simpler substances. Right, फिर क्या होगा? Then the food is passed down to the stomach with the help of food pipe. Food is churned to break it down further into smaller pieces. Right? फिर क्या होगा stomach में? Again it going to break down the food and then it is going to pass from the stomach. It is going to pass into the small intestine. Then small intestine observe the useful components of the food. वो क्या करेगा? Observe कर लेगा. And unobserved components are passed into the large intestine. Yes, जो भी unobserved components होंगे वो कहाँ पे पास हो जाएंगे? In the large intestine. Then the undigested solid food. जो भी undigested food है, it is removed from the body through anus. Right? So this is about the answer number 4th. Now long question answers is completed. So now let's start with application based question. Okay, let's read the paragraph together and then we will try to give the answers. Okay, Sarah was playing with her friends in the park. सारा क्या कर रही थी? वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेल रही थी. She tripped over a stone and fell down. क्या हो गया अचानक? वो tripped over means क्या? उसके पैर के पास एक पत्थर आ गया और वो नीचे गिर गई. She tried standing up but was unable to do. वो कोशिश कर रही थी खड़ी हो जाए बट वो खड़ी नहीं हो पा रही थी. She was in terrible pain. Right? अब जब भी हम गिरते हैं right, तो हमको दर्द होता है ना. Yes, तो सारा को भी ऐसा ही दर्द हो रहा था. She was rushed to the hospital where the doctor examined and told her that she had fractured her leg. अब उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो उसको उसके डैडी या फिर नेबर्स जो हैं आजू बाजू वो उनको कहाँ पे ले गए? हॉस्पिटल में ले गए. वहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा उसे कि यू गॉट अ फ्रैक्चर इन योर लेग. राइट, जब भी हम आप लोग में से भी कितने लोग को फ्रैक्चर हो गया है? यस, बिकॉज आप लोग गिर गए हो. यस, सो सारा भी जब खेल रही थी पार्क में उनके फ्रेंड्स के साथ तो वो भी एक दिन गिर गई एंड शी गॉट अ फ्रैक्चर इन हर लेग. द डॉक्टर पुट अ कास्ट ऑन हर लेग. सो डियर किड्स, कास्ट मीन्स पता है आपको? प्लास्टर. राइट, डॉक्टर ने एक कास्ट वाइट कलर का होता है वो उसके लेग में लगाया एंड टोल्ड हर नॉट टू मूव अराउंड. और उनको कहा कि आपको अब ज़्यादा घूमना नहीं है, यहाँ से वहाँ पे घूमना नहीं है. द कास्ट वॉज पुट टू कीप द बोन इन इट्स प्लेस. वो कास्ट क्यों लगाया था? कि बोन अपनी जगह पे ही रहे, फिसले ना. वाइल इट गॉट हिल्ड, और धीरे धीरे वो हिल भी हो जाएगी, मीन्स ठीक भी होने लगेगा. कास्ट क्यों लगाया था?
कि वो बोन जो है वो अपने प्लेस से निकल ना जाए. यस, एंड वो धीरे धीरे वो ठीक भी हो जाएगा. शी वॉज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द कास्ट. अब पैर में फ्रैक्चर है तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी. शी मिस्ड गोइंग आउटडोर एंड प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स. ये सुनो, अब वो बाहर तो नहीं, वो उसको घूमने के लिए भी मना किया था डॉक्टर ने, राइट. तो वो आउटडोर के गेम्स बहुत ही मिस कर रही थी एंड उसके सारे फ्रेंड्स को भी बहुत मिस कर रही थी. शी कुड नॉट इवन गो फॉर हर डांस क्लासेस. अब वो डांस क्लासेस में भी नहीं जा पा रही है बिकॉज उसको फ्रैक्चर आया है. इसीलिए सब आपको कहते रहते हैं कि आप लोग रन मत करो, वॉक करके जाओ, नीचे देखो. यस, आपको इंस्ट्रक्शन ऐसे देते रहते हैं ना सारे पेरेंट्स, टीचर्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कि अच्छे से चलो. बिकॉज एक छोटी गलती से हमें फ्रैक्चर हो जाता है, राइट. बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है. सो इससे अच्छा है कि हम धीरे से ही चलते रहें. आफ्टर द मंथ द डॉक्टर रिमूव हर कास्ट एंड शी वॉज एबल टू वॉक अगेन एंड डू ऑल द एक्टिविटीज़. अब 1 महीने के बाद जब डॉक्टर ने वो कास्ट खोला तब वो अच्छे से चल पा रही थी एंड जो भी एक्टिविटीज़ वो पहले नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ द कास्ट, राइट. जैसे कि वो बाहर खेलने नहीं जा सकती थी, डांस नहीं कर पा रही थी, डांस क्लासेस में नहीं जा पा रही थी. बट आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद वो अब ठीक हो गई है, राइट. उसको भी ठीक हो गया है उसका लेग. सो शी कैन डू ऑल दी एक्टिविटीज़. जो भी रेगुलर एक्टिविटीज़ वो करती थी अब वो स्टार्ट हो गई है उसकी, राइट. सो फर्स्ट वन, वाई वॉज साराज लेग पुट इन अ कास्ट. क्यों सारा का लेग कास्ट से बांधा गया? ऑप्शन ए, टू कीप हर बोन इन प्लेस, और ऑप्शन बी टू प्रोवाइड हर द सपोर्ट ऑफ द कास्ट वाइल वॉकिंग. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, राइट, कि वो बोन उसकी जगह पे ही रहे. सेकेंड वन, व्हाट वॉज शी अनेबल टू डू व्हेन शी हैड फ्रैक्चर हर लेग. वो क्या नहीं कर पा रही थी जब उसको फ्रैक्चर आया, तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी. ये सुनो, सो कौन सी चीज़ वो नहीं कर पा रही थी वो हमें बताना है. ऑप्शन ए, शी वॉज अनेबल टू वॉच टेलीविज़न. वो टेलीविज़न नहीं देख पा रही थी. और ऑप्शन बी, शी वॉज अनेबल टू प्ले आउटडोर. क्या वो नहीं कर पा रही थी? आउटडोर नहीं जा पा रही थी, राइट. अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं जा पा रही थी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. She was unable to play outdoor. So dear kids, here we have completed our today's CW, long question answers and application based question. I hope you all have understood the long question answers and completed the application based question. So here we have completed our chapter number 9, explanation also and exercise also. You all are going to write the answers, short and long question answers in your notebook. And I hope कि आपने एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए टेक्स्ट बुक में. So from next week we will start the new topic, chapter number 10. Okay, if you have any doubt you can सॉल्व योर डाउट इन दी ऑनलाइन क्लास. जब मैं आऊँगी, हम ट्यूसडे को जब मिलेंगे तब आपको जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं, राइट. सो बाय किड्स, टेक केयर, थैंक यू.